Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Humanities Adda. This will be our fourth lecture of bricks, beads and bones. And in the third lecture we completed domestic architecture. Now what we have to do is we have to discuss this source too, which is an important source for your board examination. ये source में से आपके questions भी आए हुए हैं तो हम इस source को देख लेंगे. अब इस source में what we have to study, let's look at that. इसमें basically we are going to study about the drains. So now we have Mackay. Okay, he is kind of an archaeologist, you can say. He says, he notes about the drains that it is certainly the most complete ancient system as yet discovered. And why he is making this comment? Because every you need to know the reason behind this comment. He's making this comment because every house was connected to street drains. And then you can write about the second point, like the main channels were made of bricks set in mortar and were covered with loose bricks that could be removed for cleaning. So you can see here there is a concern for cleaning again, that and the drains are they are covered as well. And in some cases you will see limestone was used for the covers. तो कुछ cases में हमें limestone देखने के लिए मिलता है जो cover करने के लिए, drain को cover करने के लिए use किया गया limestone का. House drains were first emptied into a sump or cesspit. तो first एक cesspit और sump like structure में house drains को empty किया जाता था. This is like this you can say एक आपका होता है ना जिसमें आपका सॉलिड मटेरियल जो है वो पहले यहाँ पे सेटल हो जाएगा in a cesspit, and then the remaining water can flow into the drain. तो ये पहले cesspit और sump में ये flow करेगा water यहाँ से house drain का, and then इसमें solid materials collect हो जाएंगे, and then the remaining water will flow into the drain. वेस्ट वाटर जो है वो फ्लोड आउट इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स. ओके, यहाँ तक हमने कर लिया. वेरी वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स विद sumps for cleaning. At intervals you will find there were sumps, ताकि जो ड्रेन को है वो लॉन्ग ड्रेनेज अगर चैनल है तो उसमें बीच बीच में इंटरवल्स पे आपको सम्स और सेस्पिट्स देखने के लिए मिलेंगे, विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन क्लीन द ड्रेन. तो ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन ना हो, इसके लिए ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल रही हैं. It is wonder of archaeology that little heaps of material, mostly sand, have frequently been found lying alongside drainage channels, which shows that the debris was not always carted away when the drain was cleared. तो कुछ केसेस में हमें जो heaps of material है ड्रेन के, जो ड्रेन्स की क्लीनिंग के बाद बेसिकली जो मटेरियल निकाल के साइड में रखा गया. इवन इन प्रेजेंट टाइम्स यू सी व्हेनेवर अ ड्रेन इज क्लीन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसमें भी जो भी सॉलिड मटेरियल है उसको निकाल के साइड में रख दिया जाता है. तो सेम इज द केस इन द हरप्पन सिविलाइजेशन. बट कुछ केसेस में आप देख रहे हो कि वहां पे वो डेब्री वहीं पे मिला है, मतलब excavation and all के time पे you see that debris, that heap of material is still there. That means that the debris was not always carted away when the drain was cleared. So Ernest Mackay, he has written about this, the drainage system, and he has mentioned that it is certainly the most complete ancient system as yet discovered, and reasons we have discussed in the source. Now next important point जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि that is drainage systems were not unique to the larger cities but were found in smaller settlements as well. तो ये कोई एक यूनिक फीचर नहीं है जो सिर्फ आपको जो लार्जर सिटीज हैं, जो बड़ी सिटीज हैं उसमें देखने के लिए मिल रहा है. इवन द स्मॉलेस्ट सिटीज, स्मॉलेस्ट टाउन्स हैड दिस फीचर. अनदर थिंग, आप यहाँ पे देखो कि एक स्टेटमेंट वाइज आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ जाता है एमसीक्यू के फॉर्म में, द ड्रेनेज सिस्टम वर ओनली प्रेजेंट इन द लार्ज सिटीज इन द हरप्पन सिविलाइजेशन, then that will be a wrong statement. So in respect of that also you have to remember this. Now at Lothal for example, Lothal एक साइट है. अब आप मुझे बताओगे कि हमने लोथल को डिस्कस किया है. लोथल कौन से प्रेजेंट स्टेट में, अभी प्रेजेंट डे स्टेट कौन, विच states से ये belong करती है, to which state Lothal belongs, you know this already. ये हमने थोड़ा बहुत लोथल के बारे में डिस्कशन कर रखा है. Now while houses were made of mud bricks, drains were made of burnt bricks. तो हमने लोथल के केस में हम देख रहे हैं कि जो हाउस है, जो घर बने हुए हैं वो आपके मड ब्रिक से बने हुए हैं, लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बर्न्ड ब्रिक से बना हुआ है. एंड इफ यू कंपेयर मड ब्रिक्स एंड बर्न्ड ब्रिक्स, सो यू ऑलरेडी नो दैट द बर्न्ड ब्रिक्स आर much better. Okay, they are much stronger, much good, better in quality. Okay, so we have done this source. और लास्ट वाले जो लेक्चर में हमने ये सिटाडेल भी कर लिया था. नाउ नेक्स्ट दैट वी हैव टू डिस्कस इज दिस टॉपिक, दैट इज ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस. इस पे आ जाते हैं. हमें सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक करना है, इसको हमें डिस्कस करना है. फर्स्ट आपका जो सोशल डिफरेंस है, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट
do we mean by social differences? Social differences we can see say that economy के basis पे, economic basis पे क्या कुछ कोई society में differences थे, या फिर जैसे हम ऋग्वेदिक period में देखते हैं, the early Vedic and later Vedic में देखते हैं कि there was this kind of distinction on the basis of caste. तो क्या वो उस तरीके का कुछ social difference इस time पे exist कर रहा था, या everyone was equal? तो now we have to track the social differences, that was there any kind of differences between the people, like कोई elite class हो गए और normal जो लोग हो गए, उनके बीच में क्या कोई differences थे? तो इसको हमें ट्रैक करना है. ट्रैक करने के लिए हमारे पास क्या दो चीजें हैं, हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट burials, and then we will study about then we will be looking for luxuries. इन दोनों फैक्टर्स को लेके हम चलेंगे, एंड इन दोनों ही फैक्टर से हम डिटरमाइन करेंगे कि whether there was any kind of social difference in the Harappan civilization or not. So archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were social or economic differences amongst people living within a particular culture. तो कुछ certain strategies जो है archaeologists वो use करते हैं. एक स्ट्रैटेजी जो है आर्कियोलॉजिस्ट की, इट इज अबाउट स्टडिंग बरियल्स. तो बरियल्स को स्टडी किया जाता है बिकॉज इन बरियल्स यू विल फाइंड देयर विल बी ग्रेव गुड्स. थोड़ा कुछ एक्सटेंसिव बरियल्स भी मिल जाते हैं. फॉर इन केस ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वहां पे हमें बहुत ही एक्सटेंसिव बरियल्स मिले हैं विच काइंड ऑफ इंडिकेट कि एक बहुत ही स्टार्क सोसाइटी में डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे. इलीट्स के आपके किंग्स एंड क्वींस की जो बरियल्स है दे विल बी वेरी डिफरेंट. तो उस बेसिस पे हम यहाँ हरप्पन सिविलाइजेशन में भी ट्राई करेंगे कि क्या हम बरियल्स के बेसिस पे कुछ ट्रैक कर सकते हैं सोशल डिफरेंसेस. नाउ जैसे इजिप्ट के केस में हम देखते हैं कि यू हैव द मैसिव पिरामिड्स, so some of which were contemporaries with Harappan civilization. तो यहाँ पिरामिड्स के केस में we can see that they were royal burials जहाँ पे हमें enormous quantities of wealth मिल जाता है. Similar is the case of Mesopotamian civilization. Now talking about the burials at Harappan civilization. अब हम देखते हैं कि at burials in Harappan sites जो डेड हैं उनको किस तरीके से, एक तरीके आप देखो कि बरी किया जा रहा था. They were generally laid in pits में उनको ले किया जाता था. And sometimes you will see there were differences in the way burial pit was made. तो burial pit का जो construction है वो कुछ times पे आपको दिखेगा कि there were differences as well. In some instances the hollowed out space were lined with bricks. तो कुछ cases में आपको normal एक pit देखने के लिए मिलता है which is simply dug out. In some cases you will find that a grave or a burial site or a burial pit is lined with bricks. तो उसमें आपको bricks की lining देखने के लिए मिल जा रही है. Could these variation be an indication of social differences? We are not sure. तो we can say that okay, जो जिसमें हमें bricks देखने के लिए मिल रहे हैं, maybe वो कुछ elite लोगों की burials हो सकते हैं, कुछ rich people के burial हो सकते हैं, and the burials which are like the normal pits, burial pits है, वो हम उसको कह सकते हैं कि normal people के जो burials, common man के burials हो सकते हैं. But we cannot be sure of this distinction. हम इसके basis पे we cannot be very much sure about it. Now next thing जिसको हम consider करेंगे when we are considering the burials is that you can say the grave goods. Some graves, if you see, contain pottery and ornaments, perhaps indicating a belief that these could be used in the afterlife. What does this practice indicate? ये जो practice है कि आप burials में, आप graves में goods डाल रहे हैं, तो एक तरीके का ये belief को, ये जो practice है, it indicates a belief कि ये जो सामान है, ये जो goods हैं, जो ornaments हैं, it can be used in the afterlife. तो इस belief से इस चीज को associate किया जाता है. Jewelry आप देखोगे कि it has been found in burials of both men and women, and in fact in Harappan civilization both men and women they were wearing jewelries. तो ऐसा कुछ दोनों ही ज्वेलरीज को यूज करते थे. एंड इनफैक्ट इन एक्सकैवेशन एट द सिमेट्री एंड हरप्पा इन द मिड 1980s, तो जो हरप्पन सिविलाइजेशन में हरप्पा की साइट पे जो सिमेट्री है इन 1980s जहां पे एक्सकैवेशन हुआ, वहां पे एक ornament consisting of 3 shell rings मिली है. Jasper which is a kind of semi precious stone, jasper bead हमें मिला है, and hundreds of micro beads were found नियर द स्कल ऑफ अ मेल. तो एक मेल स्केलेटन स्कल के पास से हमें ये चीजें मिली हैं हरप्पा में, एक सिमेट्री से. नाउ इन सम इंस्टेंसेस द डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर्स. तो कुछ केसेस में आपको कॉपर मिरर के इंस्टेंसेस भी मिल रहे हैं जिसमें डेड के साथ कॉपर मिरर को भी रखा जा रहा है, बरी किया जा रहा है.
But on the whole, if we see, if we have to draw conclusion on the whole, it appears that the Harappans did not believe in burying precious things with the dead, because ज्यादा instances नहीं मिले and ज्यादा expensive चीजें भी जो है वो हमें burials के साथ नहीं मिली है, like gold and all, वो चीजें हमें यहाँ पे नहीं मिली है. Now next is looking for luxuries. Looking for luxuries में आपको यहाँ पे कुछ important चीजें ध्यान में रखनी होंगी. First of all, just a second. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने फर्स्ट स्ट्रैटेजी, हमें जो ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस करने थे, हमें जो सोशल डिफरेंसेस ट्रैक करने थे, उसमें हमने फर्स्ट बरियल देख लिया. बरियल में हमने देख लिया कि देयर वाज अ सर्टेन काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन between the distinction in the ways पिट्स, बरियल पिट्स वर मेड. कुछ सिंपल थे, कुछ लाइन विद ब्रिक्स मिले हैं. ग्रेव गुड्स भी आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रेव गुड्स मिले हैं, बट ऑन द होल वी से दैट दे डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रेशियस थिंग्स विद द डेड. नाउ लुकिंग फॉर लग्जरीज. अब ये दूसरी स्ट्रैटेजी है जो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है सोशल डिफरेंसेस को, इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स. नाउ वी विल बी स्टडिंग द आर्टिफैक्ट्स एंड वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या there was a kind of any kind of social difference. Now for instance, टेक एन एग्जाम्पल दैट आप एक विलेज को इस तरीके से एक किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को अगर हम प्रेजेंट डे में माउंट में फ्यूचर में जाके गेट कन्वर्टेड इनटू माउंट एंड इमेजिन दैट देयर इज अ काइंड ऑफ एक्सकैवेशन गोइंग ऑन, तो आप देखोगे कि सभी के घरों से कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो तो आप एक्सकैवेट करके निकाल सकते हो. लाइक यू विल हैव द यूटेंसिल्स, यू विल हैव द द बेड, टेबल, चेयर एंड ऑल दीज थिंग्स. बट आप देखो कि देर विल बी सर्टेन थिंग्स. इमेजिन करते हैं, हम विलेज का केस ले लेते हैं, किसी एक विलेज का केस लेते हैं प्रेजेंट टाइम, जो बाद में जाके एक माउंट बनेगा. कुछ घरों में से ही आपको जो चीजें एक्सपेंसिव चीजें मिलेंगी, जैसे हो गया फ्रिज, हो गया वॉशिंग मशीन हो गई, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ these cell phones, laptops. So every household will not have these things. कुछ के पास कम होंगी चीजें, कुछ के पास ज्यादा होंगी. तो इस तरीके से हम आर्टिफैक्ट्स के बेसिस पे वी कैन टेल कि सोशल डिफरेंसेस है या नहीं है सोसाइटी में. नाउ मूविंग ऑन, अब हम इसमें यही देखते हैं कि द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज मेड फेयरली इजीली आउट ऑफ द ऑर्डिनरी मटेरियल सच एज स्टोन और क्ले. तो ये डेली यूज की चीजें हैं जो काफी इजीली बन जाती है. ये आर्टिफैक्ट्स आपके डेली यूज की चीज हो गई. दीज इंक्लूड कर्न्स, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर्स जो कि आपके बॉडी स्क्रबर्स हैं एक्सेट्रा, एंड आर यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेटलमेंट्स. तो दैट वाज आई वाज टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, जिसका मैंने आपको अभी एक थोड़ा एग्जांपल देने की कोशिश की. सेकंड, हम देख रहे हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम जो ऑब्जेक्ट्स वर लग्जरीज. तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या अज्यूम कर रहे हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट वो लग्जरी कब हो रही है हड़प्पन सिविलाइजेशन. व्हेन वी आर कंसिडरिंग दिस ऑब्जेक्ट और एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एज अ लग्जरी, तो दे हैव सर्टेन कंडीशन. लाइक फर्स्ट कंडीशन है कि इफ दे आर रेयर और मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल. तो अगर वो रेयर है, जो नॉन लोकल मटेरियल से बना हुआ है, फॉर एग्जांपल यू हैव द सर्टेन प्रेशियस बी स्टोन्स लाइक लैपिस lazuli हो गया, तो कुछ रेयर मटेरियल से आपने कुछ बना दिया, और विथ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज, या फिर उस आर्टिफैक्ट को बनाने में कुछ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी की यूज हुई है, तो हम इन दोनों कैटेगरीज को कंसिडर कर सकते हैं. इन दोनों ही कैटेगरीज के आर्टिफैक्ट्स को कंसिडर कर सकते हैं कि दे बिलोंग टू द लग्जरीज. 10 लिटिल पॉट्स ऑफ फ्यान्स के जो छोटे पॉट्स हैं. अ फ्यान्स इज अ मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्स्ड विद कलर एंड अ गम एंड देन फायर. तो ये जो फ्यान्स है, इट इज इसको बनाने में टाइम लगता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो इसके जो पॉट्स हैं उनको एक लग्जरी में कंसिडर किया गया. then they were probably considered precious because they were difficult to make. तो फ्यान्स पॉट को हम कह सकते हैं कि they were luxuries, okay, क्योंकि ये difficult थी, इसकी जो टेक्नोलॉजी थी that was difficult. Now the situation becomes more complicated when we find what seem to be articles of daily use such as spindle whorls made of rare materials such as faience. Spindle whorls क्या होता है? Spindle whorls is used for like your weaving and etc वाली जो चीजें हैं उनके लिए. तो आप देख रहे हो कि अगर ये डेली यूज की चीज है और उसको आप कोई एक्सपेंसिव मटेरियल में, रेयर मटेरियल में बना दे रहे हो, तो वो वहां पे कंफ्यूजन अराइज हो जाती है कि वेदर वी शुड पुट इट इनटू द लग्जरी थिंग और लाइक वेदर वी शुड पुट इट इनटू द यूज कैटेगरी ऑफ डेली यूज गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आप देखोगे कि हम गोल्ड की प्लेट्स एंड स्पून्स बना रहे हैं, तो हमें एक कंफ्यूजन होगा कि ये डेली यूज की चीजें हैं या फिर इसको हम एक तरीके से लग्जरी में कंसिडर करें. Now, if we study the distribution of such artifacts, अगर हम अब लग्जरीज वाले जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करें,
तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी. वी फाइंड दैट रेयर ऑब्जेक्ट्स, जो रेयर ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वैल्यूएबल मटेरियल्स, मेड अप ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स हैं, वो जनरली आपको लार्ज सेटलमेंट्स में देखने के लिए मिलेंगे, जैसे मोहनजोदारो and Harappa. Or smaller settlements where you will find rarely these kind of artifacts. For example, जो miniature pots of plants है, जो perhaps इनको as perfume bottles use किया जाता था, आपको ये यूजुअली आप देखो, मोस्टली देखो तो मोहनजोदारो और हड़प्पा में ही मिले हैं, एंड नन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट्स लाइक कालीबंगन. तो ये जो लग्जूरियस आर्टिफैक्ट्स हैं वो आपके हमें कहाँ से मिल रहे हैं, लार्जर साइट से मिल रहे हैं, हमें बिगर साइट से मिल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट आप देख लो गोल्ड का एग्जाम्पल. गोल्ड टू वॉज रेयर, इट वॉज ऑल्सो रेयर, एंड एज एट प्रेजेंट इट वॉज, अभी जैसे प्रेशियस है उस टाइम पे भी ये प्रेशियस हुआ करता था. ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हरप्पन साइट्स वॉज रिकवर्ड फ्रॉम होर्ड्स. तो जितनी भी गोल्ड ज्वेलरी हमें मिली है बेसिकली हमें होर्ड्स से रिकवर हुई है. नाउ व्हाट आर होर्ड्स? होर्ड्स हम यहाँ पे आप देख लेते हैं. Hoards का मतलब होता है कि these are the objects kept carefully by people often inside containers such as pots. तो कभी कभी आप देखोगे pots and all में ये अपनी जो expensive चीजें हैं उनको रख के, and they you know इसमें रख के इनको मिट्टी में जमीन में गाड़ देते थे. यूजुअली दिस इज द केस, एंड सच होर्ड्स कैन बी ऑफ ज्वेलरी, मेटल ऑब्जेक्ट्स saved for use, reused by metal workers. Metal workers सेव कर सकते हैं. इनफैक्ट एनी हाउस होल्ड कैन सेव दीज काइंड ऑफ, जो उसको होर्ड करके रखने वाली जो प्रैक्टिस है वो आपको नॉर्मल हाउस होल्ड में भी देखने के लिए मिल जाएगी कि एक्सपेंसिव चीजें हैं तो वो रख देते हैं कभी कभी. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आपको मोस्टली जो गोल्ड कॉइन्स एंड ऑल भी हमें ज्यादातर मिलते हैं वो हमें होर्ड से ही रिकवर हुए. सो इफ फॉर सम रीजन द ओरिजिनल ओनर्स डू नॉट रिट्रीव देम, तो कुछ सर्कमस्टांसेस होगा कि वो जो ओरिजिनल ओनर है वो रिट्रीव नहीं कर पाए इन पॉट्स को जिसमें आपके प्रेशियस ऑब्जेक्ट्स हैं. दे रिमेन वेयर दे आर लेफ्ट till some archaeologist finds them. So the hoards are basically, अगर आप देखो कि they are very accidental finds. They are not usual in एक archaeological excavation. आपको ज्यादा टाइम पे नहीं मिलेंगे, एंड जब मिलेंगे तो they will always have these kind of precious metals, precious coins and all that in them. Okay, so this is it for this fourth lecture. I will be doing the next topic, that is finding about craft production in the next lecture. जिसके बाद हम फिर strategies भी पढ़ेंगे for procuring material and all that. So we will be covering it thoroughly. And thank you so much for watching. And if you like the lecture, please subscribe to our YouTube channel, like this video, share it with your friends. Thank you so much.